جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو یہ جنگ تھے، یہ جدل تھے، یہی توپ تھے، یہ F-16 کے بمباریاں تھے. کہیں سے یہ ہے خبر کہ گاؤں کے اس سر میں ایک کٹا ہوا سر پڑا ہے، کبھی گاؤں کے قریب کوئی بمباری ہوئی ہے. تو ایسے حالات میں بچپن گزاری ہے. پہلے پائلٹ بننے کا شوق تھا، مگر بعد میں جب میں نے دیکھا کہ پائلٹ ہمارے علاقے میں بم گرا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کب مجھے چینج کیا گیا. ہمارے قریب علاقے زیارت شے میں یہ 2015 میں بمباری ہوئی، جس میں 4 خواتین اور 5 بچے شہید ہوئے. ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہم ان کے ٹکڑے اکٹھے کر رہے تھے. اس میں ایک کا والد تھا، انہوں نے 3 ہاتھ اکٹھے کیے، چھوٹا ہاتھ ان کے 2 بیٹیاں تھے، نہیں مل رہا تھا. تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سے سر کے ساتھ کون سے ہاتھ رکھے جائے. تو ان میں سے انہوں نے ایک کا انگوٹھا، یہ کچڑ میں انگوٹھا پڑا تھا، اس نے کہا یہ بڑی بیٹی ہے، میں نے پچھلے عید میں اس کے لیے ایک انگوٹھی خریدی تھی. تو جب یہ دیکھا کہ یہ پائلٹ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، تو ان حالات نے مجھے اس شوق سے روک کے رکھا کہ نہیں، میں ایسے چیزوں کا اعلیٰ نہیں بن سکتا ہوں یا میرے وطن کے بربادی کا سبب بنے. کرکٹ کھیلتا ہوں. بولر ہیں، بیٹسمین ہیں، آل راؤنڈر ہوں، اچھا سا اسپنر ہوں، بال ایک جگہ پھینک کر دوسری طرف گھمانا، سوئنگ کرتے ہیں. ہاں یہ بھی صحیح طرح کر سکتا ہوں. اور بیٹنگ میں جارحانہ بیٹنگ کرتا ہوں، یعنی چھکے اور چوکے لگانا تھوڑا شوق سے اور کافی پاور سے. وزیر اعظم بننے کا ایک چکر ہے اس میں. تو وزیر اعظم بننے تک جو پروسیس ہیں، یہ ایک ناممکن کویسچن ہے، آپ نے پوچھ لیا ہے. کیونکہ میں تو سرے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہاں اسٹیبلشمنٹ کے مرضی سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے میرا مطلب پاکستان کا فوج، ISI MI اور ان کے خفیہ ادارے ہیں، یہ جو ہے ان کے مرضی کے مطابق عوام کے سطح پر نمائندگوں کو چننا اور اس طرح انتخاباتی عمل میں اپنا جو مرضی ہے وہ شامل کرنا، اور باقی جتنے بھی، یہاں پر تو کوئی آزاد نہیں ہے. یہاں پر تو نہ تو صحافی کی صحافت آزاد ہے، نہ تو وکیل کی وکالت آزاد ہے، نہ یہاں پر ایک سیاستدان کی سیاست آزاد ہے، نہ پولیس کی پولیسنگ آزاد ہے، نہ یہاں پر باقی جتنے بھی ادارے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جب بنا تو صرف سینٹرلائز صرف ایک ہی ادارہ تھا جس نے باقی ادارے بنائے، تو وہ فوج ہی تھا. تو فوج کے پاس جب تک اختیارات ہو تب تک یہ کویسچن جو آپ نے پوچھا وہ پوچھنا بھی کسی نے سے نہیں چاہیے، اور نہ کسی کے یہ خواہش ہونا چاہیے کہ اس طرح طریقوں سے کوئی وزیر اعظم بنے. اگر کوئی یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اس طریقے سے وزیر اعظم بنے، تو وہ لوگوں کی جو امید ان سے لگائے گا وہ ان پر پورا نہیں اترے گا، نہ وہ پورا کر سکے گا. دہشت گردی کے پیچھے وردی کی بات جو یہاں پر پختونخوا وطن میں کرتے ہیں، یہ تو صرف پختونخوا وطن میں نہیں، 2007 میں جو وکلاء برادری کا تحریک تھا اس میں کون سا نعرہ لگ رہا. لیکن اس کی بنیادیں کس نے بنائی ہے یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے؟ کیا کرنل امام کی اس انٹرویو کو نہیں سنا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 95,000 لوگوں کو لڑانے کے لیے ہم نے ٹریننگ دی؟ جنرل حامد گل مرتے دم تک کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ جس TTP کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے عام فوجوں کو مارا ہے، اس عام فوجوں کے ماؤں بہنوں کے سامنے ان کے انٹرویو لے لو اور ان کو جیو نیوز پر چلا دو. یہ وہ کہہ رہے ہیں جرنیل ان سے فائدہ لے رہے ہیں، عام فوجی اس کا شکار بنتا جا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا ہے، آج یہی کیمرہ لے آؤ، آپ آ جاؤ، آپ کا کرایہ بھی مفت. اگر وانا سے لے کر بونیر کے پہاڑوں تک ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو اس فوج کے سرپرستی میں ان کے اڈے نہیں دکھائے تو اسٹامپ پیپر لاؤ کہ مجھے پھانسی دے دو. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک ان کو اڈے دیے؟ ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں، کوئی ماضی کی غلطیاں نہیں ہے، ابھی بھی جاری ہیں، ابھی بھی دیے جا رہے ہیں. وزیرستان میں 8 سال تک آپریشن کیا، اس کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے علاقے کلیئر کیے ہیں. تو وہ کیسے لوگ اندر آتے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں جب 50,000 60,000 فوج ایک ایجنسی کے اندر ہر پہاڑ، ہر راستے اور ہر کھیت میں کھڑا ہے؟ صحیح. دیکھو آپ بات کرتے ہیں اس وزیرستان کی، یہاں تو اسلام آباد سے لے کر ایبٹ آباد تک یہ لوگ موجود ہیں، ڈی خان کے کینٹ کے اندر موجود ہیں.
अगर आप इस चीज़ को झूठ समझते हैं तो कभी मुझे झूठा साबित करने के लिए अपना कैमरा ले आओ, लेकिन शर्त ये होगी कि आप फिर कवरेज दोगे। प्रैक्टिस से इस तरह हमारे वतन में अगर वो उनकी ख्वाहिश है या पाकिस्तान का पूरा कौम ये समझता है कि इस तरह प्रैक्टिस लोगों को बनाए ये अच्छी बात है, तो फिर लाहौर में बनाए। हमारे वतन इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पख्तूनख्वा इस चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करते हैं। फैसलाबाद में बनाए। आप कहते हैं ज़्यादातर लोग वज़ीरिस्तान है, ज़्यादातर ट्रेनिंग तुमने वज़ीरिस्तान में दी थी इनको। फिर आपको ऑपरेशन का तो चलो हम बशमुल में सब ने अपने इलाका आपको दे दिया, लेकिन आपने तो हमारे घर के किताबों तक जला दिए। मीरानशाह के मार्केट के एक एक ईंट को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ के घर के कंबल वगैरह इनको लेके जाने की क्या ज़रूरत थी? आप ऑपरेशन तालिबानों के खिलाफ कर रहे थे या हमारे घरों के सामान के खिलाफ कर रहे थे? सही। तालिबान अभी भी वहाँ पे रहे, लेकिन हमारा घर का सामान क्लियर हो गया। बांग्लादेश में जुल्म किया तो उस जुल्म के नतीजे में बांग्लादेश बना। खुद पाकिस्तान यहाँ क्या कहते हैं कि वो नौकरियाँ नहीं दे रहे थे, वो नहीं दे रहे थे, हिंदू जुल्म कर रहा। तो इन चीज़ों से दुनिया में जहाँ पर भी आज़ादी हुए हैं तो वो जुल्म के और मजलूम और जालिम के दरमियान जंग में ये चीज़ें पर शायद वो मजबूर कर दे। बाकी PTM के तो वाज़ेह मुतालबात थे, उसमें फ़िलहाल इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। बर्मा में कोई जुल्म होता है तो लाहौर में उसके हक़ के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, और फ़लस्तीन में कोई जुल्म होता है तो इस्लामाबाद में उसके लिए रिली इंतहाई इंसानियत के बुनियाद पर है। अगर हमारे साथ जुल्म हुआ है तो दुनिया में कोई भी हमारे लिए रिली नहीं निकाले, क्योंकि फिर ये जुल्म है। ये कौन सी दोगली पॉलिसी है? ये कौन सा मुनाफकत है ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं? मिसिंग पर्सनस जितने भी है अदालत में दे दे। अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा दो। ये सज़ा PTM का मुतालबा है कि अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा दो, अगर कोई बेगुनाह है तो उसको रिहा करो। इतने लोग आ गए हैं और हज़ारों अभी गायब हैं, और वो जो 1500 है वो भी गैर आइनी तरीके से बग़ैर अदालत के रिहा कर दिए गए हैं। ये पता नहीं चला है कि जिस बंदे ने 8 साल 10 साल तक जेल की मुसीबत उठाई है वो किस बुनियाद पर था, क्यों था, वजह क्या थी, कोई वजह मालूम नहीं उसकी। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इज़्ज़त से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र, आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद है, इनके बारे में कोई कहता है कि ये हमारे दिलों की आवाज़ हैं, कोई कहते हैं ये हमारा सब कुछ हैं, और कोई इन पर तरह तरह के ब्लेम लगाते हैं। तो किसी के ये हीरो हैं और कोई इनको किसी रूप में देखता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन हैं, आखिर क्या वजह है कि करोड़ों इनको चाहने वाले हैं, करोड़ों इनके लिए जान का नजराना पेश करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर पश्तीन साहब हमें वक्त देने का। चलते हैं आपके बचपन की तरफ। ये बताइएगा बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बचपन ज़्यादातर जनूबी वज़ीरिस्तान में अपने गांव में गुजरा है, और जब से थोड़ा समझने लगे हैं कि यानी एक तो बच्चा उस वक्त होता है जब वो नहीं समझ सके। जब से हमने होश संभाला है तो ये जंग थे, ये जदल थे, यही तोप थे, ये F-16 के बम्बारियाँ थे। कहाँ से ये है खबर के गाँव के उस सर में एक कटा हुआ सर पड़ा है, कभी गाँव के करीब कोई बमबारी हुई है। तो ऐसे हालात में बचपन गुजारी है, और अच्छा या बुरा कहना, ज़िंदगी हो अच्छी है, लेकिन जिस तरह हम गुजार रहे हैं उसको आप मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने कोई पुरअमन माहौल में ज़िंदगी गुजार रहा है। बदअमनी एक बला है, मुसीबत है। ये चाहे आपके अपने डायरेक्ट आपके साथ टच ना हो, आपके पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हो, तो भी दर्द उतना ही पहुंचता है। तो ये दर्द सहते सहते यहाँ तक पहुँचे। सही, गालिबन आपका तो बहुत बुरा तजर्बा रहा बचपन का। तो आपके वालिदैन, जिस तरह एक अमूमन पश्तून बलोच घरानों में होता है, वालिदैन बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, आपके वालिदैन भी सख्त थे या प्यार करने वाले थे?
मम्मी नहीं, ये वालिदैन के सख्त और प्यार करने का जो वो है, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं, क्योंकि वो सख्त वालिदैन भी प्यार तो करते हैं, इस तरह नहीं होता है कि वो प्यार नहीं करते हैं। हाँ, हमारे जो वालिद साहब हैं वो एक इंतहाई स्ट्रिक्ट बंदा है, उसूलों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। घर के जो उसूल थे उनकी पासदारी सबसे अहम होती थी। सबसे ज़्यादा पढ़ाई का टाइमिंग, खेल का टाइमिंग, सब में टाइमिंग जो टाइम टेबल था उसको ख़राब करने या उसमें इधर उधर होने का गुंजाइश बहुत कम, बल्कि नहीं देते थे बिल्कुल। अच्छा। तो वालिद साहब ये तो प्यार तो जाहिर सी बात है वालिदैन ज़रूर करते हैं, माँ बाप दोनों, और बाकी जो वो करते हैं तो अच्छे मुस्तकबिल के लिए और आने वाले वक्त में एक ऐसा बच्चा बड़ा करना जो माशरे पे बोझ ना हो, जो ऐसी गलती, यानी अगर घर में आप बेपरवाह हैं तो शायद आप कल माशरे में भी उसी तरह लापरवाह घूमो फिरो और जो कुछ बस किया उसको ये नहीं समझा कि इससे नुकसान है माशरे को या गलत, इस वजह से वो माशरे में एक अच्छा बच्चा बड़ा करने की ख्वाहिश लेके अपने बच्चों को डांटते भी है और सब कुछ करते। बाकी प्यार तो ज़रूर होती है और बहुत ज़्यादा। मेरे वालिदैन तो शायद सख्ती यानी स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ प्यार भी करते थे। सही। तो आपको बचपन से क्या बनने का शौक था? आपकी ड्रीम जॉब क्या थी कि मैं क्या बनूं? यार असल में ये था कि हम उस वक्त कबायली इलाकों में थे, तो मैंने असल में अपना मैट्रिक आर्मी स्कूल बनू से किया है। पहले तो 6th 7th 8th तक गांव के स्कूल में था, उसके बाद आर्मी स्कूल बनू में पढ़ते थे। पहले पायलट बनने का शौक था, सही। मगर बाद में जब मैंने देखा कि पायलट हमारे इलाके में बम गिरा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कब मुझे चेंज किया गया। हमारे करीब इलाके ज़ियारत जे में ये 2015 में बमबारी हुई जिसमें 4 ख़वातीन और 5 बच्चे शहीद हो गए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। हम उनके टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे, उसमें एक का वालिद था, उन्होंने 3 हाथ इकट्ठे किए, छूता हाथ उनके 2 बेटियां तो नहीं मिल रहा था, तो ये पता नहीं चल रहा था कि कौन से सर के साथ कौन से हाथ रखे जाए। तो उनमें से उन्होंने एक अंगूठा, ये कीचड़ में अंगूठा पड़ा था, उसने कहा ये बड़ी बेटी है, मैंने पिछले ईद में उसके लिए एक अंगूठी खरीदी थी। तो जब ये देखा कि ये पायलट लोग इस तरह भी करते हैं, तो इन हालात ने मुझे इस शौक़ से रोक के रखा कि नहीं, मैं ऐसे चीज़ों का अलाकार नहीं बन सकता हूँ या मेरे वतन के बर्बादी का सबब बने। सही। तो खेल में आप कितनी हद तक दिलचस्पी रखते थे और कौन से खेल आपको पसंद थे? क्रिकेट खेलता हूँ। बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं? ऑलराउंडर हूँ, अच्छा सा स्पिनर हूँ, बॉल एक जगह फेंक कर दूसरी तरफ घुमाना, स्विंग करते हैं। हाँ, ये भी सही तरह कर सकता हूँ। और बैटिंग में जारहाना बैटिंग करता हूँ, यानी छक्के और चौके लगाना थोड़ा शौक से और काफ़ी पावर से। अच्छा। खूबसूरती में क्या पसंद है आपको? कुदरती खूबसूरती में आपको क्या पसंद है? इंसानी खूबसूरती में आप क्या पसंद? कुदरत तो है ही खूबसूरत, कुदरत खूबसूरत होता है। आर्टिफिशियल चीज़ तो ज़ाया होने वाली चीज़ होती है। कुदरत खूबसूरत है और या तो मेरा नज़र है या पश्तूनख्वा वतन की खूबसूरती को नज़रअंदाज करना मेरे लिए तो नामुमकिन है, लेकिन उस जैसा खूबसूरत वतन और उस जैसी खूबसूरती वहाँ के लोगों के आदात, इखलाक और पश्तून वाली जो अच्छे लोग हैं, जो मतलब बुराई को पसंद नहीं करते हैं, उनको ये सब अच्छी आदतें पसंद है। सही। इंसानी खूबसूरती में आपको क्या पसंद है? आँखें, बाल, कद? ये नहीं होता है, ये खूबसूरती कद में या बालों में या आंखों में नहीं होती है, खूबसूरती इंसानियत में होती है। एक इंसान कितना % इंसानियत के मुताबिक काम करता है, तो उसमें होती है। मुझे इंसानियत, इंसान के अंदर इंसानियत पसंद है। सही सही सही। तो आपने सियासत में दिलचस्पी लेनी कब से शुरू की? ये सिरे से सियासत में दिलचस्पी नहीं है, हम जिसे कहते हैं, मजबूर हो गए थे। हमने अपनी मौत को, हमारी तरफ एक प्रोवर्ब है कि जब ये बकरा होता है या भेड़ वगैरह होती है, जब ईद से पहले
यानी उसको ज़बह करने से पहले, कुर्बान करने से पहले जब उनको पानी दिया जाता है तो हमारी तरफ एक और भी कि वो उस पानी में छुरी देखते हैं। हमने अपने जो माशरा है उसमें अपने लिए छुरी देख लिया कि यहाँ हमें ज़बह किया जाएगा, यहाँ हमें मार दिया जाएगा। हमारे आसपास का जो माहौल था वो बहुत टेंस था, उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम यानी अभी भी हमें सियासत की समझ ज़्यादा नहीं, हमें हमारे अंदर एक दर्द है अपनों की, अपने वतन की, मजलूमों की। उस दर्द को जब हमने बयान किया, लोगों ने कहा ये अच्छा सियासत है, हालांकि हमें इनकी तारीफ़ नहीं आ रही थी। सही। कभी बचपन जिस तरह आप बता रहे हैं बहुत ही अफसोसनाक गुजरा, तो इस ज़िंदगी में जितनी आपने गुजारी है कभी किसी से मोहब्बत भी की होगी? इंसान का एक फितरती जज्बा है, हर शख्स उसमें से गुजरता है। अल्लाह न करे किसी पर ऐसे वो आ जाए हालात जिसमें हम गुज़र रहे हैं या जिसमें हमने अपना बचपन और जवानी गुजरा है। नहीं होता है इस तरह फिर। यानी आपके ज़हन में, आपके सोच पर हमेशा एक मज़लूम की जो तस्वीरें हैं जो आपने अपनी आंखों से देखी है, आपने कभी शायद किसी बमबारी में छोटे बच्चों के खून के या जिस्म के लुत्फ़े और वो नहीं देखे होंगे, और ना किसी का कटा हुआ सर जो वहाँ पर आपका अपना भी हो, आपका रिश्तेदार वगैरह उनके देखे होंगे। जब वो देख लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका लगाव किसी और तरफ। हाँ, ये हकीकत है कि अपने वतन के साथ बेपनाह मोहब्बत है, इस हद तक है कि दुनिया के सारे मुश्किलात, यानी जो काम हम कर रहे हैं, इल्ज़ाम जो भी जितना भी लगा सके लगा लें, कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो कोई आसान काम नहीं है, वो रिस्की भी है। इतने ताकतवर लोग, जंग चाहने वाले लोग कि अपने मफादात है उनको जंग से रोकना और यहाँ अमन की बात करना उनके सामने, ये आसान नहीं है। हमने देखा था इसके बदले में लोगों को मारा जाता है। तो ये जब कर रहे हैं तो इसको आप मोहब्बत ही समझे कि इतना मोहब्बत था अपने वतन और अपने लोगों के साथ कि हमें मजबूर कर दिया कि दुनिया में इससे ताकतवर कोई चीज़ नहीं होती है। इनका एहसास जो है वो यही है कि हर बार यानी खुशी हो या गम हो, जो भी हो, आपको एक चीज़ का एहसास होता है कि हमारे वतन के आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। क्या हम जिस तरह बड़े हुए हैं, हमारे बेटे बेटियां भी इसी तरह के माहौल पर हम रहम व करम पर छोड़ दे, या वो कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। हम अपने आने वाले नस्लों के लिए ऐसा एक माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसमें जो क्वेश्चन आपने किया उस क्वेश्चन का वो बहुत ही बेहतरीन और रियलिटी पर मबनी जवाब दे सके कि हाँ, मैंने इंसान के साथ यानी जो इश्क होता है रोमानवी वो किया है, या उसको किस तरह यानी वो मतलब इतना गम और उसमें ना हो कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने में उनको मुश्किलात हो। सही, क्योंकि पश्तून जो भी है ट्राइब, अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारी जो वैसे एजुकेशन ओवरऑल कम है, लेकिन फ़ीमेल की और ज़्यादा कम है। बीइंग अ यंग लीडर, आप क्या समझते हैं ख़वातीन की तालीम कितनी ज़रूरी है, इसके साथ साथ उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितनी ज़रूरी है? ये आम सवाल है। यहाँ सिर्फ तालीम पूछा जाता है, औरतों के तालीम, यहाँ औरतों के सिर्फ तालीम का मसला नहीं है। औरत को तालीम का हक देने वाले लोग भी मुआशी हक मैंने देखा है कि नहीं दे रहे कि वो अपने लिए कारोबार बनाए। सियासी हक उनका कहाँ है, समाजी हक उनका कहाँ है? यहाँ पर यानी औरत का तालीमी हक के अलावा बहुत सारे और भी हुकूक हैं। जब तक समाजी हक उसको नहीं मिलता है तो उस वक्त तक जितने भी बाकी हुकूक हैं वो बहुत मुश्किल हो जाए। समाजी हक मतलब समाज में एक बराबर इंसान की तरह रहने की जो हक है। तो मैं समझता हूँ और कोशिश भी करते हैं कि औरत को उसका समाजी हक भी मिले, सियासी, मुआशी, तालीमी हर किस्म का हक मिले। अपनी तरफ से जितना हमसे हो सके हम करते हैं। अपने जलसे जुलूस में जितने भी ख़वातीन पार्टिसिपेशन करते हैं मर्दों के मुकाबले में, मर्दों के जो पार्टिसिपेशन है उनके मुकाबले में जो तनासब होते तकरीर का उनका ज़्यादा देते हैं, ताकि यहाँ पर
وہ اپنی وطن کی بات خود کر سکے، یہ ان کا سماجی حق ہے، ان کا سیاسی حق ہے، اور اسی طرح خواہش ظاہر کرتے ہیں اور کام بھی کریں گے کہ عورت کو سماجی، سیاسی، معاشرتی، تعلیمی تمام حقوق ملے اور ہو، اور اپنی طور سے یعنی ہماری جو بیٹی ہوتی ہے یا ہماری جو بہنیں ہوتے ہیں ان کو اس طرح تربیت، یا بیوی ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے، اس طرح تربیت کہ وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکے، وہ مطلب یہاں پر سیاسی، سماجی، معاشی طور پر وہ بہترین سوچ کی عامل ہو، اور اس پر عمل کرنے بھی اس کو رکاوٹ نہ ہو، اور وہ معاشرے کے لیے یعنی سیاسی، سماجی، معاشی ہر قسم کی فائدے کا سبب بن سکے۔ صحیح۔ اگر منظور پشتین وزیر اعظم بن جاتا ہے تو کون سے 5 کام کرے گا ملک کی بہتری کے لیے؟ یار یہ تو بہت یعنی آپ نے کمپلیکس کویسچن پوچھا۔ 5 سوال یہاں تو سب سے پہلے مجھے وطن کی خود مختاری، یعنی پختونخوا وطن کی خود مختاری، جتنے بھی باقی ہیں سب کو خود مختار کہ وہ اپنے سرزمین پر اپنے ہی زندگی کے جو ان کے بلڈ کیمسٹری ہے، فکری کیمسٹری ہے، ان کے مطابق اپنے لیے نظام بنا کر اپنی ہی زبانوں میں اور اپنے ہی حالات کے مطابق معاشی نظام اور سب کچھ برابر کر سکے۔ یہ زبردست بات ہوگی کہ وہ خود مختار ہو اور اپنے فیصلے خود کر سکے، یہی سب سے اہم بات ہوگی۔ باقی یہاں پر وزیر اعظم بن کر یہاں پر تو یعنی یہ پاکستان میں جس طرح کے وزیر اعظم بننے کا ایک چکر ہے، اس میں تو وزیر اعظم بننے تک جو پروسیس ہیں یہ ایک ناممکن کویسچن ہے، آپ نے پوچھ لیا ہے، کیونکہ میں تو سرے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہاں اسٹیبلشمنٹ کے مرضی سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے میرا مطلب پاکستان کا فوج، ISI، MI اور ان کے خفیہ ادارے ہیں، یہ جو ہے ان کے مرضی کے مطابق عوام کے سطح پر نمائندگوں کو چننا اور اس طرح انتخاباتی عمل میں اپنا جو مرضی ہے وہ شامل کرنا، اور باقی جتنے بھی یہاں پر تو کوئی آزاد نہیں ہے، یہاں پر تو نہ تو صحافی کی صحافت آزاد ہے، نہ تو وکیل کی وکالت آزاد ہے، نہ یہاں پر ایک سیاستدان کی سیاست آزاد ہے، نہ پولیس کی پولیسنگ آزاد ہے، نہ یہاں پر باقی جتنے بھی ادارے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جب بنا تو صرف سینٹرلائز صرف ایک ہی ادارہ تھا جس نے باقی ادارے بنائے ہیں، تو وہ فوج ہی تھا۔ تو فوج کے پاس جب تک اختیارات ہو تب تک یہ کویسچن جو آپ نے پوچھا وہ پوچھنا بھی کسی نے سے نہیں چاہیے، اور نہ کسی کے یہ خواہش ہونا چاہیے کہ اس طرح طریقوں سے کوئی وزیر اعظم بنے۔ اگر کوئی یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اس طریقے سے وزیر اعظم بنے تو وہ لوگوں کی جو امید ان سے لگائے گا وہ ان پر پورا نہیں اترے گا، نہ وہ پورا کر سکے گا، کیونکہ جب تک ہر ادارہ اپنا کام خود نہیں کرے گا، یعنی ہم کہتے ہیں فوج ٹینک بنا سکتے ہیں، فوج ٹینک جہاز بنا سکتے ہیں، وہ بندوق کو بھی چلا سکتے ہیں، ان صلاحیتوں پر ہمیں وہ اعتراض، لیکن فوج پارلیمان بنائے گئے، یہ ان کا صلاحیت ہی نہیں ہے۔ فوج یہاں پر ایجوکیشن میں، باقی ڈپارٹمنٹس میں، یہاں وزیرستان میں اور باقی فاٹا میں تو ٹھیکے جو ہیں ٹھیکیدار یہ بھی یہ کرتے ہیں، اور یہ جو خیر پختونخوا میں تو بہت گڑبڑ حالات ہے، خود مختار پختونخوا یا خود مختار بلوچستان، خود مختار پنجاب، خود مختار سندھ، یہی ان کا پاس حل ہے۔ ہر علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل سے بھی باخبر ہوتے ہیں اور ان کے حل کے لیے وہاں کی لیڈرشپ سنجیدہ بھی ہوتی ہے، لیکن جب ان کے پاس اختیار نہ ہو تو کیسے حل کریں گے؟ صحیح۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار دیا جائے جو پراپر آئین کے مطابق ہے۔ منظور پشتین صاحب، آپ امن کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو رسک پر لیا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے پیچھے ہیں، ان کی زندگیاں بھی رسک پر ہیں، لیکن بات یہ ہے اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ ایک نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ امن کے نعرہ تو ضرور لگائیں گے، امن کا نعرہ تو لگائیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اب آپ ڈائریکٹ وہ کیا کہتے ہیں وار کی جانب جا رہے ہیں، کنفرنٹ کر رہے ہیں۔ یہ یہاں پر سیاست کو بدنام اس لیے کیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی سچی بات کرو گے تو آپ کو مطلب انتشاری وغیرہ کہلا کر آپ کو خاموش کر دیا جائے گا۔ اس طرح ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی کی بات جو یہاں پر پختونخوا وطن میں کرتے ہیں، یہ تو صرف پختونخوا وطن میں نہیں، 2007 میں جو وکلاء برادری کا تحریک تھا اس میں کون سا نعرہ لگ رہا، لیکن اس کی بنیادیں کس نے بنائی ہے یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے
کیا کرنل امام کی اس انٹرویو کو نہیں سنا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 95,000 لوگوں کو لڑانے کے لیے ہم نے ٹریننگ دی؟ جنرل حامد گل مرتے دم تک کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، ہم اس وردی کی بات کرتے ہیں جو با اختیار ہے، جس کے پاس یہ اختیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ان کے جو آفیسرز ہیں وہ اپنے فوجی کو جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے کنونس کرتے ہیں کہ دیکھو ان سے اس فوجی کی ماں بہن پر کیا گزرے گا جو اس جنگ میں لڑتے ہوئے مارا گیا یا شہید ہوا ہے، یا اس طرح کے ان کو سوالات کرتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس ماں بہن پر تب کیا گزرے گا جب ان کو مارنے والے لوگوں کو آپ کل عام شاہی مہمان بناؤ گے، جب کل عام ان کو سپورٹ دو گے۔ یہ جو فوجیوں کو مارا اس سے زیادہ تو ہمارے عام عوام کو مارا ہے۔ صحیح ہے۔ 70,000 پشتون مارے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جب خود دعویٰ کرے، جب کرنے والے خود دعویٰ کرے کہ یہ ہم نے کیا ہے، ہم اس کے بعد بھی ان پر دعویٰ نہ کرے کہ آپ نے کیا ہے، یہ زراعت والوں نے کیا ہے یا یہ جنگلات والوں نے کیا ہے یا ایجوکیشن والوں نے کیا ہے، ہمارا قتل جس نے کیا ہے ہم اسی کی تو بات کریں گے۔ ہم طالبان، فوج یا ان جتنے بھی خفیہ ادارے جو بھی ظلم کرے گا، جس نے بھی ظلم کیا ہے، کلا اس ظلم کو بھی بیان کریں گے اور ظالم کا بھی نام لیں گے۔ ہم نے یہاں پر طالبان کا نام لیا ہے، لیں گے اور آئندہ بھی لیتے رہیں گے کہ انہوں نے ہمارے وطن میں ظلم کیا ہے، فوج نے کیا ہے، اداروں نے کیا ہے، جس نے بھی ظلم کیا ہے۔ ہم ظلم کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جب تک عام عوام کو ریئلائز نہ ہو جائے، جس نے نہیں دیکھا ہے جنگ، تب تک وہ ان لوگوں کی سپورٹ کریں گے اور یہ سمجھے گے کہ کوئی اچھا کام شروع ہے، اور اس جب برے کام کو اچھے کام کے نام سے سپورٹ کیا جائے گا تو وہ مزید بدتر بن جائے گا۔ تو ہماری زندگی دیکھو، آپ کہتے ہیں یہ نعرہ مطلب سخت ہے، جو ہمارے اوپر توپوں کے، ٹینکوں کے اور ہوائی جہازوں کے بمباریاں ہو رہے تھے، ہم کو مارا جا رہا تھا، ہمارے عام عوام ایک نقیب اللہ تو نہیں تھا، اس طرح ہزاروں کے لوگوں کو دہشت گردی کے نام پر مارا جاتا ہے، اور جو اصل دہشت گرد ہے احسان الاحسان، اس کو شاہی مہمان بنا کر کبھی چھوٹ بھی دو کہ بس یہ تو وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، ہم نے یہ برداشت کیا۔ یہ لوگ ایک نعرہ تک، وہ بھی ایک ایسا نعرہ جس کا دعویٰ ان کے خود جرنیلوں نے اور وزیر اعظم تک لوگوں نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پروکسیز ہر ملک بناتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ سوویت یونین کے خلاف ایک بلاک بنانا تھا، بنا لیا، تو اس وقت امریکہ بھی اس میں شامل تھا، انہوں نے بھی فراہم کی مدد ہر طریقے کی، تو اب بعد میں وہ چلے گئے، آہستہ آہستہ پھر ٹی ٹی پی نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے بھی دشمن ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے کتنے لوگ مر گئے ہیں اسی جنگ میں، تو جب یہ نعرہ لگتا ہے تو جو لوگ قربان ہو گئے ہیں تو کیا سمجھیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ جس ٹی ٹی پی کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے عام فوجیوں کو مارا ہے، اس عام فوجیوں کے ماؤں بہنوں کے سامنے ان کے انٹرویو لے لو اور ان کو جیو نیوز پر چلا دو۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جرنیل ان سے فائدہ لے رہے ہیں، عام فوجی اس کا شکار بنتا جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا ہے، آج یہی کیمرہ لے آؤ، آپ آ جاؤ، آپ کا کرایہ بھی مفت۔ اگر وانا سے لے کر بونیر کے پہاڑوں تک ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو اس فوج کے سرپرستی میں ان کے اڈے نہیں دکھائے تو اسٹامپ پیپر لاؤ کہ مجھے پھانسی دے دو۔ آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک ان کو اڈے دیے ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں، کوئی ماضی کی غلطیاں نہیں ہے، ابھی بھی جاری ہیں، ابھی بھی دیے جا رہے ہیں۔ وزیرستان میں 8 سال تک آپریشن کیا، اس کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے علاقے کلیئر کیے ہیں، تو وہ کیسے لوگ اندر آتے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں جب 50,000 60,000 فوج ایک ایجنسی کے اندر ہر پہاڑ، ہر راستے اور ہر کھیت میں کھڑا ہے۔ صحیح۔ دیکھو آپ بات کرتے ہیں اس وزیرستان کی، یہاں تو اسلام آباد سے لے کر ایبٹ آباد تک یہ لوگ موجود ہیں، ڈی خان کے کینٹ کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو جھوٹ سمجھتے ہیں تو کبھی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنا کیمرہ لے آؤ، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ پھر کوریج دو گی۔ صحیح۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ یہی کروا رہے ہیں پاکستان کے خفیہ ادارے جو کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ادوار میں یہاں پر پراکسی وارز کے لیے ان لوگوں کو ٹریننگ دی اور چلا رہے تھے، وہ آج بھی بالکل اسی طرح جاری ہے۔ یہ صرف ایک رومانٹک بات ہے لوگوں کو توجہ ہٹانے کے لیے کہ ابھی وہ ماضی کی کوئی غلطیاں نہیں، ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی چمن سے لے کر کوئٹہ سے لے کر علم
बुनीर के पहाड़ों तक ये लोग बत्ते भी ले रहे हैं, ये लोग मौजूद भी हैं। और सरकारी सरपरस्ती तो जब एहसान लहसान की हम बात करते हैं तो क्यों लोगों को इतना बड़ा एग्जाम्पल भी नहीं दिखाया जा रहा। खुद उन फौजियों के ख़ानदानों को धोखा दे रहे हैं जो इस जंग में मारे गए। उनके साथ जुल्म किसने किया? ये फौजी लोगों को किसने मारा? उन्होंने मारा जिनको यही खुफिया इदारा और ये जनरल कह रहे हैं कि हमने ट्रेनिंग दी। उनके अलावा किसने मारा है? आप मुझे बताए टीटीपी के एक कमांडर इस तरह बताए कि वो अफगान और रशिया वार के वक्त में नहीं पैदा हुए। ये तो सारे उस वक्त के ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं। ये उनका दावा है कि वो लोग जो थे टीटीपी वाले वो हमारे मुखालिफ हो गए और बाद में एक ब्लॉक बना लिया, मुख्तलिफ मुल्कों की प्रॉक्सीज बन गए, उनकी इमा पर मारते रहे। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो लोग थे इनका ज़्यादा का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था। हमारे लिए मजबूरी बन गई थी कि हम वहाँ ऑपरेशन करते और हमने कहा भी था कि यहाँ से निकल जाएं वक्ती तौर पर, क्योंकि हमने ऑपरेशन करना है, हमने टाइम फ्रेम दिया था। पहली बात ये है कि वो हमारे मुखालिफ बन गए तो क्यों पैदा करते हो हमारे वतन में इस तरह के लोगों को? क्यों आप लोगों को बदमाश बना रहे? आपको किसने इजाज़त दी कि आप प्रॉक्सी वार करो? आप अगर डरपोक नहीं है, बहादुर है, किसी की मुखालफत करते हो तो खुलकर क्यों नहीं करते हो? प्रॉक्सी से इस तरह हमारे वतन में अगर वो उनकी ख्वाहिश है या पाकिस्तान का पूरा कौम ये समझता है कि इस तरह प्रॉक्सी लोगों को बनाए ये अच्छी बात है तो फिर लाहौर में बनाए। हमारे वतन इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पख्तूनख्वा इस चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करते, फैसलाबाद में बनाए। आप कहते हैं ज़्यादातर लोग वज़ीरिस्तान है, ज़्यादातर ट्रेनिंग तुमने वज़ीरिस्तान में दी थी इनको, ज़्यादातर लाहौर में देते तो फिर लाहौर में हो जाता। इस तरह कितने लोगों को आप दहशतगर्दी के नाम पर ये नकीबुल्लाह से लेकर बाकी जितने थी आपने मार दिए। आपने क्या हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन किसके खिलाफ किया? आप एक कमांडर का नाम बता दो जिसको इन फौजियों ने मारा हो, एक कमांडर का नाम बता दो। वो लिस्ट क्यों डिस्क्लोज नहीं करते हैं जिसमें वो कह रहे कि हमने तालिबानों को मारा है? वो इस लिस्ट को डिस्क्लोज करे, खुलेआम दिखा दे। वो तो सिंपली कहते हैं जो DGISPR के बयानात थे उसमें ये किया गया कि 15,000 के करीब टोटल TTP की गई और जितने उन्होंने मारने की दावा किया वो तो 95,000 से भी ज़्यादा बनते। तो ये कैसे है? ये आम लोग। फिर आपको ऑपरेशन का तो चलो हम बशमुल में सब ने अपने इलाका आपको दे दिया, लेकिन आपने तो हमारे घर के किताबों तक जला दिए। मीरानशाह के मार्केट के एक एक ईंट को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ के घर के कंबल वगैरह इनको लेके जाने की क्या ज़रूरत थी? आप ऑपरेशन तालिबानों के खिलाफ कर रहे थे या हमारे घरों के सामान के खिलाफ कर रहे थे? सही। तालिबान अभी भी वहाँ पे रहे हैं लेकिन हमारा घर का सामान क्लियर हो गया। सही, मतलब वो ऑपरेशन नहीं था, सिर्फ ऑपरेशन में ये जिनको वो दहशतगर्द के हमारे मुखालिफ थे वो थे, इनसे ज़्यादा आम आवाम को नुकसान मिला है, कहीं ज़्यादा। लोगों को अब ये चीज़ें उस फिल्म की तरह लग रहे हैं जिसमें एक बंदा एक हीरो हीरोइन का हासिल करने के लिए एक वक्ती तौर पर विलन पैदा करते हैं, उसको मार दाड़ के एक रोमानवी और कैरेक्टर पैदा करके थोड़ी ट्विस्ट पैदा करते हैं। तो इसी तरह लोग कहते हैं अब फाटा के अवाम कि ये पहले जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबानों को और दीगर को बना दिया गया, फिर यहाँ पर तालिबानों ने लोगों को मारना शुरू किया। फ़ौज आया, कबाइलिया मुजाहिदीन को कहा कि आप लोगों तो हमारे अपने हैं, आए आप लोगों के इलाकों को साफ करें, आप पर तकलीफ आई है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इलाके में दाखिल हो गए। वो जो तालिबान थे वो जनूबी वज़ीरिस्तान से सिर्फ मार नहीं दिया गया, न पकड़ा गया, सिर्फ जनूबी से शिमाली में शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने शिमाली में लोकल तालिबान को बनाना शुरू कर दिया, फिर वहाँ पर उन्होंने स्टेक्स, फिर लोगों को मारना शुरू किया। फिर फ़ौज ने शिमाली वज़ीरिस्तान के लोगों को कहा कि क्या करें, आप लोगों पर तो मुश्किल आई है, हम आपको इस हवाले से वो फिर आए। तालिबानों को वो जो टीम था जिनको बनाया, न मारा न पीटा न पकड़ा, बस सिर्फ इलाका कंट्रोल किया, वो अपने कब्जे में ले लिया और उनको एक जगह से दूसरी जगह खुरम एजेंसी शिफ्ट हो गई। वहाँ पर शिया सुन्नी के नाम से हमारे बहुत सारे वहाँ पर तुरिया और दीगर कबाइल को जो हमारी बिरादरी है पश्तून, उनको मारा गया। और फिर यहाँ पर शिया सुन्नी के फसाद बनाकर फिर यहाँ पर लोकल सिस्टम बना दिया गया। फिर वहाँ फ़ौज ने कहा कि ये तो जुल्म हो रहा है, हम इनके खिलाफ आ रहे हैं, उनको न मारा न पकड़ा।
पकड़ा, शिफ्ट कर दिया सिर्फ औरकजई तक, फिर औरकजई से इस तरह शिफ्ट होते होते एलम के पहाड़ों तक पहुंचा। जब ये सारा कब्जा हो गया तो यहाँ के जो मदनियात थे, आज भी स्पिनवाम के मदनियात बगैर रियल्टी के वहाँ से हमें ले के जा रहे हैं। बोया मोहम्मद खेल के जितने भी यहाँ पर शाउल के जितने पहाड़ हैं चलगोजे के, बोया मोहम्मद खेल में सोने और कापर के जो खान हैं, इस तरह फाटा के जितना भी वो है ये मदनियात वो लिए गए। ये तो कहते हैं कि फाटा के मदनियात एक हीरोइन थी, ये एक हीरो था और बीच में जो एक विलन का किरदार अदा कर दिया गया। ये तो अभी आवाम वहाँ पर ये चीज़ समझ रहे हैं। सही सही सही। आप कह रहे हैं कि आप तशद्दुद की बात नहीं करते हैं, आप हक की बात करते हैं। हाँ, अवामी नेशनल पार्टी भी यही कहती है कि भाई ये तशद्दुद की बात करते हैं, इन्हें इदारों से नहीं टकराना चाहिए, वो गलत कह रहे हैं। देखो, अगर अपने हक की बात करना इदारों से टकराना है, फिर तो दुनिया में कहीं पर भी हक की बात ये ऐलान कर दे कि ना करे कोई। हमने इदारों से टक्कर जो ज़ुबानी है वो इसलिए ली है कि इन इदारों की वजह से इन्होंने सख्त जुल्म किया है, हमारे वतन को, हमारे अमन को सख्त नुकसान पहुंच रहा था, हमारे लोग गायब हो रहे थे, हमारे आम आवाम को दहशतगर्द समझाकर लोगों को दिखाकर मारा जा रहा था। तो इस वजह से हमने उनको सिर्फ ये बयान किया है कि ये किया। हम तो फ़ौज के मुखालिफ एक बात नहीं की, वो कहा है जो हम पे गुजरा है। तो अगर अपने हालात बयान करना होना चाहिए था, सब हम पर शफकत की हाथ फिरते कि कबायली लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। ये कौन सी बात है कि लोग कहते हैं कि ये इदारों के साथ टक्कर है। और अगर हक की बात करना और यहाँ पर अपना हक मांगना, जालिम को जालिम कहना, मजलूम को मजलूम कहना, और वो भी कुल अल्फाज में, कोई इसको टक्कर समझे कि इसको क्या समझे, हम करेंगे, करते रहेंगे। यहाँ पर एक फ़िलासफ़ी पैदा की गई है कि जब कोई आपके हुकूक पर कब्ज़ा करे, जब आपको मारे पीटे, इनको कोई इंतशार नहीं कहा जाएगा। जब आप उनको इस इंतशार के ख़िलाफ़ बात करोगे तो उसको इंतशार कहा जाएगा, और आपको बदनाम करे कि ये तो शोर मचा रहे। ज़ाहिर सी बात है, किसी ने किसी के हक पर कब्जा किया है, वो उस काबिज को कब्जे से हटाने के लिए थोड़ा दकम पिल तो करना पड़ता है। इसको तारीख ने इंतशार नहीं, टक्कर नहीं, बल्कि मुज़ाहमत का नाम दिया है। हम मुज़ाहमत अपने हुकूक से, हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से किया है और पुरअमन तरीके से करेंगे। सही। आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, ISI MI फ़ौज, ठीक है, उसमें पश्तून भी तो है ना? हाँ है। तो वो सही है या वो गलत है? देखो, पश्तून इख्तियार नहीं है उनका। हम यहाँ पर, मैंने पहले आपको क्या बात की कि हम बाइख्तियार वर्दी की बात करते हैं। यहाँ पर एक पश्तून है, और मेरे लिए ये चीज़ अहम भी नहीं है। अगर आप जुल्म करते आप पश्तून है तो तालिबान भी तो पश्तून है, मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा। जो फ़ौज में पश्तून है और जुल्म करेगा, मैं तो उनके ख़िलाफ़ भी बात करूँगा। इसमें पश्तून है या पंजाबी है, जो भी जुल्म करेगा हम जुल्म के ख़िलाफ़ है। बाकी अगर आप फ़ौज के स्ट्रक्चर को देखें तो फ़ौज का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है कि ये एक इस तरह स्ट्रक्चर है जो इसमें पश्तून रवायात या पश्तून इक़दार तारीख़ इनकी कोई हिस्सा नहीं है। तो ये जब बन जाता है, इसमें आगे चला जाता है, तो ये उनको माइंड सेट को बहुत तरीके से ब्रेन वाश कर जाता है। अक्सर अगर ब्रेन वाश न भी हो, अच्छे हो, तो भी वो इख्तियार नहीं रखते इन चीज़ों का। वो तो तनख्वाह के लिए और उनके लिए अपना वो करेंगे जो उनको ऑर्डर मिलता है। सही। इल्ज़ाम लगता है कि उसी एस्टेब्लिशमेंट में जो पश्तून धड़ा है उसका एक ख़ास हिस्सा आपको सपोर्ट करता है, आपका उनसे राब्ता है? यार इस तरह है कि एस्टेब्लिशमेंट या इन चीज़ों के अंदर पश्तूनों का, अपने पश्तूनों का सपोर्ट अगर कोई है तो अच्छी बात है। मेरा होंगे ना, जिस तरह आप कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल होंगे, जिनको लगा होगा या ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया होगा, कहा होगा गलत है। होंगे। जब आपकी तहरीक उठी तो आपसे अप्रोच किया होगा। अब यहाँ पर पश्तूनख्वा वतन में जासूस हो या अच्छे लोग, उनकी प्रमोशन या डिमोशन इस बात पर कि PTM की मुखालफत है, हिमायत, जो हिमायत करते हैं उसको डिमोट करो, जो ये चीज़ बनी हुई है। बाकी मेरे साथ राब्ते तो नहीं है, लेकिन शायद और होंगे, मेरा ख्याल है उसके अंदर ऐसे लोग होंगे जो पश्तून वतन में जारी जंग को भी समझते हैं और इन चीज़ों को शायद यानी इस तरह के
आवाज़ के वो वतन को सपोर्ट करे वो होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई राब्ता नहीं है, न मेरे साथ ऐसा कोई सबूत है जो मैं पेश कर सकूं। सही, आपके साथ लेफ़्ट भी काफ़ी एक्टिव होती है जलसे जुलूस में, अगर इस्लामाबाद या लाहौर में हो। लेफ़्ट का एक बयानिया ये है कि ये शौनिज़म नेशनलिज़म करते हैं, एक धड़ा ये कहता है कि भाई आपके साथ है, वो कहते हैं कि हमें उस तरीके से साथी नहीं समझते हैं, क्योंकि हम भी मज़दूर के लिए या एक पिसे हुए तबके के लिए, एक पिसी हुई कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं। दुनिया का तारीख़ गवाह है कि शॉविनिस्ट या रेसिस्ट सिर्फ मुक़्तदर हल्का रह चुका है। महकूम लोग अपने हक़ के लिए बात करना और उसको शॉविनिस्ट कहना, ये इंतहाई गलत और इस चीज़ से उनकी आवाज़ को दबाने वाला किरदार है। हम नेशनलिस्ट हैं क्योंकि हम अपने पश्तून वतन की बात कर रहे हैं और ये ज़ाहिर सी बात है, अगर हम पर जुल्म हुआ है तो हम कोई ताजिकिस्तान, इंडिया या सऊदी अरबिया की बात तो नहीं कर सकते, अपनी वतन की तो करेंगे। तो ये यहाँ पर रियासत ने इस तरह माहौल पैदा किया हुआ है कि पश्तूनों के सरजमीन पर एक जंग छिड़ देगी, और ये इतनी वो थी मनसूबाबंदी के तहत थी कि ये पश्तून वतन और पश्तूनों के वजूद से बाहर नहीं निकल रही थी। एक का दो का वाक़यात होंगे, लेकिन जो पूरी जंग का वो एक पैटर्न था वो पश्तून वतन या पश्तूनों के वजूद के साथ मंसूब रहा। तो जाहिर सी बात है हमने अपने वतन की और अपने लोगों की बात करनी है। तो बाकी जो लिफ्ट के लोगों को के लिए एहतराम भी है, एहतराम दिया भी है, उनको अपने जलसे जुलूसों में तकरीरों से लेकर हर किस्म पार्टिसिपेशन की भी हमने पूरी वो दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यहाँ पर इंसानियत पर यकीन रखते हैं। तो जो भी हमारा इस नाम पे कि हम इंसानियत को सपोर्ट देते हैं, हमारे पश्तून वतन की जो केस है उसको हमने कभी भी डिस्क्रिमिनेटरी नज़र से नहीं देखा है, न देखेंगे। सही, क्योंकि आप भी मजलूम हैं, यहाँ पे बलोच भी खुद को समझते हैं, सिंधियों के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है, तो आप इस तहरीक को पाकिस्तान लेवल पर क्यों नहीं बनाते हैं ताकि सब मिलकर पावर ज़्यादा हो, जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ मौसर आवाज़ होगी। आपकी जो ख्वाहिश है कि बलोच और पश्तूनों का एक ही आवाज़ हो, बलोच आज़ादी मांगते हैं और पश्तून भी, मुझे समझ नहीं है कि आप भी समझते कि वो आज़ादी मांगे या उनके नहीं, बलोचों के दो तीन वो हैं। एक वो है जो आज़ादी मांगता है, जो लड़ रहा है। एक वो है जो कहता है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिलने चाहिए, उसके मुताबिक जो है हम उसमें रहने को तैयार हैं, हमें जो हकूक दिए हैं आइन ने वो हमें। बलोच हमारे भाई हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना हम अपने लिए बाइस फ़ख्र समझेंगे कि हर वक्त उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। फिर तो यानी बलोच आपने कहा कि मुख्तलिफ हैं, तो फिर तो हर कोई गिला करेगा कि मेरे साथ भी एहतियात करो, मेरे साथ। और अगर बलोच आ गए एहतियात के लिए तब हम सोचेंगे। अभी तक हमारे और उनके दरमियान इतना कोई लिंक मजबूत नहीं हुआ है या बना नहीं है कि हम उनके साथ एहतियात बनने का जो ऑप्शन है उसको ज़ेर गौर लाए। इनके बहुत सारे यानी हवाले होंगे जिसको देखना होगा। और बाकी ये बात ज़ाहिर सी बात है कि बलोच हमारे पश्तून सरज़मीन के साथ बिल्कुल अटैच है। उनकी साथ जुल्म ज़्यादती हुई है या उनके जो वसाइल लूटे जा रहे हैं या उनके सरज़मीन पर जो कुछ हो रहा है, उनके हवाले से हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दियाँ भी हैं और मौका मिला कि उनको कुछ खैर पहुंचा सके ज़रूर पहुंचाएंगे। केस ये है कि हम अपने ख़ुद इतने सख्त हालात में गिरे हुए हैं, पूरे दुनिया के एक जंग आया हुआ है और हमारे सरज़मीन पर लड़ाया जा रहा है, तो उनमें हम ख़ुद बहुत सख्तियों से गुज़र रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात होगी और करेंगे। और बाकी बलोच के साथ अगर इतिहाद बनता है या इसके लिए ऑप्शन आ जाता है तो इसको हम बड़े मुस्बत तरीके से इस पर गौर करेंगे। सही, पीटीएम की वजह से जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया तो उनका कुछ सोचा है पीटीएम उनको क्या करेगी? वो सियासी लोग हैं ना। पीटीएम सबके लिए, पीटीएम खुद सियासी है। सही, पीटीएम एक सियासी तहरीक है। पीटीएम गैर पार्लिमानी सियासत करता है, मुज़ाहमती सियासत करता है। सियासत मतलब जलसा जुलूस धरना, पुरअमन तरीके से हुकूक के लिए जदोजहद करना, तो ये हम तो करते हैं, कर रहे हैं और करना चाहिए। हम यहाँ पर फरिश्ता मोमेंट के हवाले से जब पीटीएम ने और एएनपी के वर्करों ने एहतजाज किया था तो रात गए ARY न्यूज़ पर एक पट्टी चल रही थी कि पीटीएम वाले इस पर सियासत कर रहे हैं। देखो,
اگر ہم اس پر دھرنا یعنی سیاست دھرنا جلسہ جلوس نہ کرتے تو اس کے FIR نہیں درج ہوتا. ان کے باپ کے کو جو یہاں پر قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ نہیں آتا, 20 لاکھ روپے کا چیک ان کو نہیں ملتا, وہ لوگ برطرف نہیں ہوتے. سیاست بہت طاقتور ہے, لیکن اگر سچا ہو, عوام کو فائدہ دینا اپنی ہی قربانی کے ذریعے, تو یہی سچا سیاست ہے. ہم مزاحمت ہی سچا سیاست کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. پاکستان کے آئین پر آپ کو یقین ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس آڑ میں کوئی پشتونستان بنانا چاہ رہے ہیں. دیکھو, یہ ہم اسٹریٹ ٹاکنگ نہیں کر سکتے ہیں. ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تو دنیا کے نظریے کو, دنیا کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر پشتونستان, اگر پشتونخوا کو ریاست پاکستان ایسا بنا دے جیسا لندن, اس میں امن بھی ہو, معیشت بھی ہو, تب بھی اگر پشتونخوا کے لوگ اٹھیں اور اپنے لیے ایک آزاد مملکت کی ڈیمانڈ کرے, جس میں اپنی زبان, اپنی ثقافت کے مطابق دنیا کے ممالک کے صفوں میں اپنا نام اور اپنے قوم کا نام بطور ایک ملک کھڑا کر دے, اپنے بچوں کو دنیا میں سفیر بھیجے, اپنے لیے کرکٹ ٹیم اور فوج وغیرہ بنا دے, یہ تب بھی ان کا انسانی حق ہے جب ان کو سب کچھ دیا گیا. رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن, یہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ پرامن طریقے سے کوئی بھی اپنے لیے ایک آزاد مملکت اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن رکھ سکتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. PTM نے اپنے مطالبات واضح کیے ہیں اور ریاست کو بھی پیش کیے. اس میں اگر یہ چیز موجود ہے تو آپ بتا دیں, اگر اس میں موجود نہیں ہے تو پھر ویسے اگر باتیں کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے, یہ ہے, تو اس طرح تو ہم بھی ہزار باتیں کریں گے کہ پاکستان بہت جلد یعنی انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتا ہے, جب ہم بیس لیس ہوگی یہ بات, کیونکہ اس طرح کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس کرتارپور وغیرہ کو دیکھ کر اگر بندہ کہیں بھی دے تو تھوڑا بنیاد بھی بنا دیتا ہے کہ وہاں پر وہ بہت کلوز آ رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے میں ضم ہو جائے. تو یہ باتیں ہیں, باتیں لوگ کریں گے. اگر ریاست لوگوں کو, عواموں کو اس پر نہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ آزادی کا سوچے, عوام خود نہیں کرتے. بنگلہ دیش میں ظلم کیا تو اس ظلم کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا. خود پاکستان یہاں کیا کہتے ہیں کہ وہ نوکریاں نہیں دے رہے تھے, وہ نہیں دے رہے تھے, ہندو ظلم کر رہا. تو ان چیزوں سے دنیا میں جہاں پر بھی آزادی ہوئے ہیں تو وہ ظلم کے اور مظلوم اور ظالم کے درمیان جنگ میں یہ چیزیں پر شاید وہ مجبور کر دے. باقی PTM کے تو واضح مطالبات تھے, اس میں فی الحال اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے. صحیح. الزام ہے کہ افغانستان کے کچھ لوگ, باہر بیٹھے کچھ لوگ آپ کے تھرو اپنے مضمون مقاصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ بھی جب کہتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں لر و بر کا, تو پھر اسے بڑی وہ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے آئین کے پاکستان کو وہ مانتے ہیں تو جو آپ کی ڈیمانڈ ہے, عجیب سی بات ہے کہ جب برما میں کوئی ظلم ہوتا ہے تو لاہور میں اس کے حق کے لیے آواز اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے, اور فلسطین میں کوئی ظلم ہوتا ہے تو اسلام آباد میں اس کے لیے ریلی انتہائی انسانیت کی بنیاد پر ہے. اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو دنیا میں کوئی بھی ہمارے لیے ریلی نہیں نکالے, کیونکہ پھر یہ ظلم ہے. یہ کون سی دوغلی پالیسی ہے, یہ کون سا منافقت ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں افغانستان نہیں, پورے دنیا کے انسان ہمارے لیے نکلے اور ہمارے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, اور ہم اس کو خوش آئند بھی کہیں گے اور اس کو اچھی نظر سے دیکھیں. باقی وہاں پر جتنے بھی ہوئے ہیں تو PTM کے مطالبات کے لیے بات ہوئی ہے, اس میں نہ صرف افغانستان بلکہ ہر ملک کے لوگوں نے, ایون باہر بیٹھے سندھو پنجابیوں نے بھی ان میں حصہ بھی لیا ہے, اور یہ کرتے رہیں گے. اور ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان اس چیز کو سپورٹ کرے کہ انسانی حقوق کے لیے اگر دنیا کے انسانوں کو یہ باور دلا سکے کہ دنیا میں جہاں پر بھی انسانیت کے ساتھ ظلم ہو تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہاں پر انسانیت کے ساتھ ظلم میں بہت کمی آئے گی. آگے ایک ظاہری بات ہے, بیٹھنا تو پڑے گا. اگر اپنے مطالبات منوانے ہیں دونوں فریق کو بیٹھنا پڑے گا. تو کتنی کوششیں ہوئی ہیں آپ لوگوں کے درمیان؟ کوششیں کم ہوئی ہیں, اور جو ہوئی ہیں وہ بھی اس حد تک مخلصانہ نہیں تھے کہ اس فاصلے کو کم کر سکے. ہمارا مطالبہ یہ ہے پہلا کہ یہاں پر بہت زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوا ہے, ان سب کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن معنی یہ ہے کہ سچائی پر مبنی کمیشن بنے تاکہ اس کے بعد معافی ایک دوسرے کو دے سکے.
ये बनाए ताकि हमें भी पता चले कि कातिल कौन था मकतूल, और यहाँ पर ये फासले कम हो जाए। आज तक वो नहीं बनाए। उसमें अभी ताहिर दावड़ है या APS के शुहदा है या इस तरह वकला का जो था क्वेटा में या नकीब है या जितने भी है, ये सब है। इन सब के हवाले से जब ट्रुथ कमीशन बनाया जाएगा तो सब के सब केसेस इसमें लेके आएंगे और इन पर इनकी तहकीकात पर बात होगी और एक बात बीच में आ जाएगी कि यहाँ पर गलती किसकी थी, फिर गलती की नोयत पर बात करके बात को सुलझाने की कोशिश वो नहीं हुई है। दूसरा ये था मुतालबा के मिसिंग पर्सनस जितने भी है अदालत में दे दे, अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा दो। ये सज़ा PTM का मुतालबा है कि अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा दो, अगर कोई बेगुनाह है तो उसको रिहा करो। इतने लोग आ गए हैं और हज़ारों अभी गायब हैं, और वो जो 1500 है वो भी गैर आइनी तरीके से बग़ैर अदालत के रिहा कर दिए गए हैं। ये पता नहीं चला है कि जिस बंदे ने 8 साल 10 साल तक जेल की मुसीबत उठाई है वो किस बुनियाद पर था, क्यों था, वजह क्या थी, कोई वजह मालूम नहीं उससे की। और इस हवाले से लैंड माइंस के हवाले से हमारा मुतालबा है कि लैंड माइंस साफ़ किए जाए, और आज तक लैंड माइंस साफ़ नहीं किए गए हैं। और हमारा मुतालबा था कि जितने भी कब्ज़े किए गए ख्वाजा खेला के गर्ल्स कॉलेज से लेकर चमन के बॉर्डर तक, और बॉर्डर में जो कारोबार है तुरखम है या अंगूर अड्डा है या गुलाम खान है या दिगर है, उन पर जो कब्ज़ा किया गया NLC के ज़रिए, या इसके अलावा हमारे मदनियात पर जो कब्ज़े किए हैं, या हमारे घरों पर जो कब्ज़े किए हैं, या हमारे जंगलात पर जो कब्ज़े किए हैं, कारोबारों पर किए, ये कब्ज़े रिहा कर लोगों को, या DHA के नाम से आम पश्तूनों को पेशावर जैसे ज़िले में 500 रुपये पे एक करनाल बाई फोर्स लेना, ये सारे कब्ज़े के ज़मरे में आते हैं। ये कब्ज़े माफ़ कर दिए जाए, ये आम आवाम को उनकी ज़मीन दी जाए, उनकी कारोबार दिए जाए ताकि ये लोग ज़िंदगी बसर कर सके। तो ये हमारा मुतालबा था। हमारा ये मुतालबा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी तबाह हुआ है उनका अजाला किया जाए। पेशावर के बाज़ार से लेकर फाटा के घरों तक, अवरगज़ई हो या वज़ीरस्तान हो, जितने घर में स्मारे या मीरान शाह के बाज़ार है या खार है या कोई और है, जितने भी हैं उन सब को अजाला किया जाए। और छठा मुतालबा था कि जितना भी वार हुआ है इसका मुतनासिब भी एक लेआउट तैयार किया जाए। यहाँ कहते हैं 200 अरब डॉलर नुकसान हुआ है, किसका हुआ है? पश्तून ख्वा का कितना है, बलूचिस्तान का कितना है, ये तनासिब निकाले जाए। बाकी नौकरियों में तो इतना तनासिब लगा था कि आगे लिखा होता कि 1 है फाटा का, पश्तूनख्वा के 3 है, पंजाब के 15 है। यहाँ पर भी तनासिब लगा दी जाए ताकि यहाँ पर एहसास तो हो जाए लोगों को कितने लोग मारे गए, उसमें कितने थे पश्तूनों के, कितने बाकी थे, दहशतगर्दी के वाक़यात, ये सब कुछ एक लेआउट है। और पश्तून वतन को श्योरिटी दी जाए कि कोई प्रॉक्सी वार इसकी सरजमीन पर नहीं लड़ेगी। ये हमारा मुतालबा। सही, आगे फर्दर स्ट्रेटजी क्या है? यूं जलसे करते रहेंगे, मोबिलाइजेशन होगी या कुछ जलसा मुज़ाहमत में अवाम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और अवाम का जलसे में आना इस चीज़ पर इत्तिफाक और उन पर एतमाद होता है। तो जाहिर सी बात है हम मुज़ाहमती सियासत में इस बड़े प्रोसेस को तो इग्नोर नहीं कर सकते। जलसा जुलूस धरने, ये अपने वतन में मोबिलाइजेशन, लोगों को समझाने और देखने कि यहाँ कितना एतमाद है इस चीज़ पर लोगों का, और फिर रियासत को ये चीज़ दिखाना कि आम आवाम का मौक़िफ़ क्या है। तो वो जलसे के ज़रिए हम उनको बता सकते हैं। जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, धरने भी करेंगे, पुरअमन मुज़ाहमत में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो फिर सारे अगर वक्त आया तो इस्तेमाल करेंगे। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने बातें सुनी, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मसला ये है कि एक का पॉइंट ऑफ व्यू तो हर वक्त नशर होता रहता है, जो भी बयान हो, लेकिन दूसरी पार्टी को बग़ैर सुने हम अपनी राय बना लेते हैं। इसी वजह से जो एक पढ़ा लिखा हो या एक समझबूझ वाला इंसान हो, उसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनने चाहिए, उसके बाद अपना राय आमा बनाना चाहिए। बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि जिस हवाले से बात की जाए उन इलाकों को देखा जाए, कि उनको सुना जाए, उनके पास जाया जाए, तब जाकर अपना राय आमा बनाया जाए। तो इसी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।